आज हम क्लास 10 हिंदी मीडियम लेसन 5 द स्नेज के बारे में पढ़ेंगे। ये लिखा है, इसके राइटर हैं एंटन चेखव। तो देखिए कि द स्नेज का मतलब होता है छींक। छींक जो है अचानक कोई नाक से जो क्रिया उत्पन्न होती है वो छींक कहलाती है। छींक के बारे में इस पाठ के अंदर बताया गया है। तो वन ब्यूटीफुल इवनिंग आइवन चर्बिकोव minor officer was sitting in the opera house watching a famous opera. As he sat there, he felt extremely relaxed and happy. But suddenly his face grew wrinkled, his eyes shone, and he held his breath. He took off his glasses, went forward, and shook his knee. देखिए, एक सुहानी शाम को, एक खूबसूरत शाम को आइवन चर्बिकोव नाम का एक बंदा था, एक व्यक्ति था जो एक छोटा अधिकारी था। वो ओपेरा हाउस में ओपेरा देख रहा था, मतलब कि नाटकशाला में या सिनेमा घर में सिनेमा देख रहा था या नाटक देख रहा था। जैसे ही वह वहां बैठा, उसने अपने आप को बड़ा आरामदायक और खुशनुमा महसूस किया। अचानक किंतु या परंतु अचानक उसका जो चेहरा है वो लाल पीला होने लगता है, आंखें गोल गोल घूमने लगती हैं, उसका जो चश्मा जो है वो इधर उधर होने लगता है। उसी वक्त उसकी नाक से छींक आती है, आछू, और वह छींक देता है। Now sneezing is not prohibited to anyone present. Sneeze and chief of police sneeze and even politicians sneeze. Everyone sneezes naturally. Chervikov did not feel embarrassed at what he had done. He wiped his nose with his handkerchief, glanced about his politics to make sure that he had not disturbed anyone while sneezing, and then he felt deeply ashamed. He saw that an old man who was sitting in front of him was painfully wiping his bald spot and the back of his neck with his cloak and muttering something. He was Chervikov, recognized journalist of the Department of Highway. अब उसने छींक दिया तो उसने समझा कि मेरी छींक से किसी को कोई परेशानी तो नहीं हुई। उसने उस व्यक्ति ने चर्बिकोव ने इधर उधर उस ओपेरा हाउस में, उस नाटकशाला में देखने का प्रयास किया। कहीं कोई चीज उसे दिखाई नहीं दी। थोड़ा उसने अपने आप को रिलैक्स या आरामदायक महसूस किया, लेकिन सामने ही एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो टकला था। उसके सिर पर बाल नहीं थे, वो रुमाल से अपने टकली चांद को ऐसे ऐसे करके पहुंच रहा था। उस चर्बिकोव ने देखा कि शायद इस बंदे पर इस छींक के जो है वो छींटे पड़ गए। वो व्यक्ति जनरल गंजलॉफ नाम का व्यक्ति था। वो डिपार्टमेंट ऑफ हाईवे में अधिकारी था, सड़क परिवहन। I sneezed on him, thought Chervikov. He is not my chief, but still is the above what I must oblige. Chervikov
cleared his throat, shifted himself forward, and whispered in the churl's ear, "I beg your pardon. Your Excellency sneezed on you. I accidentally. Never mind, never mind. For heaven's sake, excuse. I didn't mean. Oh, sit down, please. Let me listen to what is being said." Cherbikov was terribly confused. He smiled identically and began watching the opera again. He looked at the stage but no longer felt happy. Exactly, anxiety was beginning to trouble him. During the next interval, he approached General Vizirov and murmured, "I sneezed on your Excellency, excuse me. You see, I did not do it too." देखिए, चर्बिकॉव ने जब उस व्यक्ति को देखा कि शायद उस पर छींट में पड़ गए हैं छींक के, तो उसने सोचा कि मुझे इस व्यक्ति से माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि ये मुझसे गलती हुई। तो चर्बिकॉव उस व्यक्ति से माफ़ी मांगने के लिए जाता है। अब कहता है कि मुझसे जाने अनजाने में जो गलती हुई उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ऐसा करना नहीं चाह रहा था, लेकिन इस छींक पे किसी का बस नहीं चलता है, वो तो आ जाती है। तो जनरल वेंजलॉफ नाम का जो व्यक्ति था उसने उसको जहाँ वैसे नहीं लिया, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है, माफ कर। चर्बिकॉव दोबारा आके ओपेरा देखने लगता है। वो सोचता है कि शायद वो चिंतित है कि इस व्यक्ति ने मुझे शायद माफ नहीं किया। Oh, enough of that, I already forgotten about it. You will keep on it. The same thing said the general, impartially twisting his lower lips. He says he has forgotten what there is the malice in his eyes. Thought Cherbikov, glancing at the general suspiciously. "You won't even speak. I must explain that I didn't mean that sneezing is a law of the nature, or else he might think I was fainting. If he doesn't think so now, he will let her or reaching her." देखो, चर्बिकॉव व्यक्ति जो है वो एक बार दोबारा जाता है उसके पास माफी मांगने के लिए। वो व्यक्ति उससे कह देता है कि मैं भूल चुका हूं, आप भी भूल जाइए, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, मैंने माफ कर दी। चर्बिकॉव जो व्यक्ति जो है वो अब पता नहीं क्या उसको सोचता है, वो उसके दिमाग में टेंशन हो जाता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है। तनाव उत्पन्न होने के बाद वो सोचता है ओपेरा खत्म हो जाए। फिर वो on reaching home, Cherbikov told the wife and the incident he was around at first, but when the learned the child Prinzilov was not her husband, she felt sons. "Still, you must go and applaud," she said. "He might think you don't know how to behave in society. That's a justice," said Cherbikov. "I have applied," but he acted so truthfully he did not say anything sensible, but then there was no time for conversation. The following day, Cherbikov set forth in his new uniform and went to the Prinzilov office to explain things to him. In the general reception room, there was a large crowd of petitioners sitting at a large table. In the center of the room was the general, who had already begun his reception after he had thwarted the table of the petition. The general raised his eyes to Cherbikov. "Yesterday at the opera house, you have to remember, Your Excellency, a little official began. I sneezed and accidentally spat it on his excuse. You are talking about the same thing again, so what nonsense? What can I do for you?" Cherbikov turned pale. "He won't speak to me," he said to himself. "That means he is angry. I must explain the whole thing to him." देखिए, चर्बिकॉव की जो पत्नी थी, चर्बिकॉव जब घर पर पहुंच जाता है तो ये सारी बात जो है अपनी धर्म पत्नी को बताता है, अपनी पत्नी को बताता है। कहता है कि मैं जब ओपेरा देख रहा था, मुझसे जाने अनजाने में छींक आई, और छींक के जो छींटे थे वो ब्रिंजलॉफ नाम का जो व्यक्ति था, जनरल ब्रिंजलॉफ नाम का जो व्यक्ति था, उस पर वो छींटे पड़ जाते हैं। अब उस पर वो छींटे पड़ गए तो मैंने उससे क्षमा मांगी था, उसने माफ कर दिया। अब पत्नियां जो होती हैं वो थोड़ा अलग टाइप की होती हैं। उस पत्नी ने कहा कि नहीं,
तुम्हें उससे दोबारा माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो समाज में तुम्हें गलत तरीके से देखा जाएगा या समाज में तुम्हें अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करना आता, ऐसा लोग समझे। अब पत्नी की कही हुई बात को चर्बिकोफ दिल पर लेता है, वो सोचता है कि सही कहे, तो वो नई ड्रेस पहन के चर्बिकोफ जो है वो ब्रिंजलॉफ के ऑफिस में जाता है। वहां पर क्या था, मीटिंग चल रही थी, बहुत सारे जो व्यक्ति थे उसके क्लाइंट थे ब्रिंजलॉफ के, उस चारों तरफ बैठे हुए थे, वो बैठा हुआ था। उसने देख लिया कि मीटिंग चल रही है, मीटिंग खत्म हो जाती है, चर्बिकोफ उसे क्षमा याचना करता है, कहता है कि वो कल वाला जो ओपेरा वाला जो मिस्टेक हुई थी उसके लिए मैं आप मुझसे क्षमा कर। ब्रिंजलॉफ कहता है, क्या कहता है, When the general had to finish the interview with the last question, was leaving Charbikov stepped up to him the Mamba, Your Excellency, if I dare to trouble you, it is the only I can sort at from a feeling of petition I did not see, or the perhaps purpose Your Excellency must protect. The general made him the fearful person, the famous hand is satisfied. You have simply choked himself, his head is disappearing. Behind the door, says I am talking, thought the Charbikov, but there is no joke about this at all. Is the general and is the can't understand what the man, common man like me in going thought I am going to be beg man's pardon again. I will write him a letter, but I will not come here again. Charbikov could not stop thinking about the incident and the fog homework. He did not write that letter to the general. He thought and thought, but could not think of anything to write. He decided to go back to the general the following day and explain everything in person. I came extra day and the trouble excellency. He murmured and in the face the general, but not with the idea of the choking in the excellency. He remarked, I found it to the ask for your forgiveness, because when I sneezed, I did not dream of choking. How could I dare to such a thing? To choke would be the so no respect for person. Get out toward the general, suddenly quaking and the crowing said in the face. देखिए क्या होता है कि पत्नी जब कह देती तो उससे माफी मांगने ले चलते, तो जनरल जो ब्रिंजलॉफ था उससे कह देता है, ठीक है भैया मैंने माफ तो कर दिया, अब क्यों परेशान कर रहे हो मुझे, ऐसी कोई बात नहीं है, हो जाती है गलती, है ना। तो चर्बिकोफ नहीं, आपने मुझे माफ नहीं किया, आप मुझे माफ कर दीजिए, है ना। तो वो कहता है, अरे भाई क्यों मेरे पीछे पड़ी, कह तो दिया भैया मैंने आपको माफ कर दिया, है ना। लेकिन चर्बिकोफ मानने वाला नहीं था, उसके बार बार उसने कह दिया कि भैया मैंने माफ कर दिया आपको, ऐसी गलती हो गई, लेकिन चर्बिकोफ उससे बार बार जाके माफी मांगता है, और जब बार बार जाके माफी मांगता है तो जनरल ब्रिंजलॉफ जो है वो क्रोधित हो जाता है, नाराज हो जाता है। वो कहता है कि कैसा मूर्ख इंसान है भाई, मैंने आपको तुझे माफ कर दिया कि भैया ऐसी कोई बात नहीं है, कि फिर भी कह रहा है कि भैया माफी, किस बात की माफी। अब तो क्या होता है भाई, चर्बिकोफ भी वास्तव में समझ लेता है कि इसने मुझे माफ नहीं किया है, इसने मुझे माफ नहीं किया है, उसे और शर्मा जाता है कि नाराज हो गया है। लेकिन नाराज होने की वजह क्या थी कि उसने एक बार माफ कर दिया। आप किसी इंसान के पास एक ही चीज कहकर बार बार उसे परेशान करोगे तो जाहिर सी बात है कि उसको गुस्सा आएगा, तो वो समझता है चर्बिकोफ नहीं, इसने मुझे माफ नहीं किया, और नाराज हो गया। अब जो जनरल ब्रिंजलॉफ जो व्यक्ति था वो चर्बिकोफ को अपने ऑफिस से गेट आउट कर देता है, बाहर कर देता है कि जाओ यहां से। कैसे कैसे पागल इंसान आ जाते हैं। अब क्या, What is why the Charbikov, he was horrified to see the general so angry. Something seemed to be the fact inside the Charbikov. He stumbled through the door out of into the street. He could not see or hear things, and he crawled along the pavement. He walked home mechanically, and when he reached there, he lay down on his sofa without taking off his uniform and tie. देखिए चर्बिकोफ को वो व्यक्ति जनरल ब्रिंजलॉफ जो था वो जब गुस्से में
मना करता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, जब कह दिया मैंने माफ कर दिया है, तो उसे गुस्से में बाहर निकाल देता है। अब चर्बी को और सदमा लग जाता है कि कहता है कि इसने मुझे माफ नहीं किया, और वो घर पे जब घर के रास्ते के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में उसे चीजों की आवाज सुनाई नहीं पड़ती है, जब वाहनों की आवाज सुनाई नहीं पड़ती है, वो रास्ते में मरते मरते बचता है। अब जैसे तैसे वो व्यक्ति अपने घर पे पहुंचता है। चर्बी को घर पे पहुंचता है तो उसके दिमाग में वो बात दिल पे ले लेता है कि शायद मुझे बंदरों ने माफ नहीं किया है, वो शेख जो हो गई उसके लिए उसने माफ नहीं किया है। इस प्रकार से व्यक्ति जो दिल पे लेता है अपने, तो बिना यूनिफॉर्म के उतारे हुए वो सोफा पे लेट जाता है। जब वो व्यक्ति सोफा पे लेटता है तो उसी वक्त चर्बी को अपने प्राणों को त्याग देता है, यानी कि वो खत्म हो जाता है। कौन? चर्बी को अपना का व्यक्ति। और ये पाठ जो है यहाँ पर समाप्त होता है। देखिए बच्चों, आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति के दिल पे उसने किस प्रकार से इस बात को लिया कि उसका पिंड उससे मरने से छूटा। चिंता चिता समान होती, ये बात पाठ से साबित होती है। चिंता चिता समान होती है, ये बात इस पाठ से साबित होती है। कैसे? कि उस व्यक्ति ने अपने दिल पे इस प्रकार से दिलो दिमाग में एक ही बात ले ली कि शायद उसके अधिकारी ने, जो ब्रिंजलॉफ नाम का व्यक्ति था, उस अधिकारी ने मुझे माफ नहीं किया है। बल्कि ऐसा नहीं था, उस अधिकारी ने नॉर्मल बात समझ के उसको माफ कर दिया था। लेकिन इधर उसकी पत्नी भी थोड़ी मक्कार, पत्नियां ऐसी ही हुई। किसकी पत्नी? चर्बी को। उसने और ज्यादा आग लगा, उसने कहा कि नहीं, तुम्हें तो उससे और माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो लोग समझेंगे तुम्हें समाज के साथ अच्छा व्यवहार करना नहीं है। तो यही बात उसको दिल पे लेती। उसकी पत्नी उसको मना कर देती उस वक्त के, नहीं हो गया काम, माफी मांग ली। लेकिन नहीं, ये मृत्यु अगर उसकी आई तो उसकी पत्नी का इसमें मेहनत, जो उसका रोल, वो उसको उसी वक्त मना कर देती कि आप माफी मांग गया, बात खत्म हो गई, उसने माफ कर दिया होगा, क्यों आप टेंशन ले रहे हो। लेकिन उसने कहा नहीं, आपको जाना चाहिए, दोबारा जाना चाहिए। उसकी पत्नी ने ऐसा किया, इसकी उसकी मृत्यु। तो देखिए, इस पाठ के अंदर ये बताया गया कि एक चर्बी खौफ नाम का एक व्यक्ति होता है। इस पाठ में बताया गया चर्बी खौफ नाम का एक व्यक्ति था, किस प्रकार से अपने दिलो दिमाग में ये बात को बिठा लेता है कि नहीं, उस व्यक्ति ने, उस जनरल ब्रिंजलॉफ ने मुझे माफ नहीं किया है। जब उसकी पत्नी की वजह से ऐसा होता कि पत्नी उस टाइम पर मना कर देती कि नहीं, आपको माफ कर दिया, माफ कर दिया उसने, आपने माफी मांग ली, बात खत्म। इसके मरने का रीजन और इधर वो व्यक्ति जो ऐसा हो जाता है चर्बी को, किससे बार बार माफी मांगने जाता है। जाहिर सी बात है, मैं भी हूं या आप भी हो, किसी व्यक्ति के पास बार बार एक ही चीज के लिए जाएंगे और उस व्यक्ति ने आपको माफ कर दिया, कुछ शौक है, मतलब कोई भी बात है, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आती है एक ही बात के लिए वो व्यक्ति सामने वाला आपसे नाराज हो जाएगा। जब नाराज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो क्रोध करेगा, तो आप उसको गलत तरीके से ना लें। ये नहीं समझे कि उसने ऐसा मेरा काम नहीं किया, उसने आप मुझसे माफ नहीं किया। लेकिन किसी को बार बार परेशान करेंगे तो जाहिर सी बात ऐसा तो होना ही। तो चर्बी को आपने अपने दिल पे और दिमाग में एक ही बात ले ली, उसने मुझे माफ नहीं किया, उसने मुझे भगा दिया है। इस सदमे से उसने अपने आप के प्राण त्याग लिए, वो खत्म हो गया, उसने सदमा। ये पाठ ये बताता है कि हमें कभी भी कोई भी बात दिल और दिमाग में इस कदर नहीं लेनी चाहिए कि वो बात उसकी मृत्यु का कारण बने, वो बात उसके मरने का कारण बने, उसकी मृत्यु का कारण बने। तो बच्चों, इस पाठ से आप सीखेगा, कभी भी कोई बात अपने दिलो दिमाग में मत लीजिए। एक बार जब आपने कोई चीज कह दी, कर दी, तो उसे बार बार सोचिए विचारिए मत, नहीं तो बहुत चिंता समान हो जाती है। एक बिंदी का फर्क है बच्चों। तो यही था इस पाठ के अंदर मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। ऐसा आप समझ लीजिए, इस पाठ के अंदर था। इसके प्रश्नोत्तर देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले ही भेज दिए हैं
आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको प्राप्त हो गए हों। देख लीजिएगा, उनको फेयर कॉपी में कीजिएगा, याद कीजिएगा। कोई परेशानी हो तो मुझे पूछिएगा। ये पाठ था वो मैंने आपको बता दिया है। अगले पाठ में अपन अगले वीडियो में अगले पाठ के बारे में बात करेंगे। इस पाठ का नाम होगा, जानते ही हो आप, 6वां पाठ है द न्यूक्लियर इन द टीम। उसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सर्वोदय बाल बिहार स्कूल के नाम से। ठीक है, नमस्कार।